Great Pleasure welcomes you all to this amazing bootcamp on the behalf of the whole GUC team. I hope you all had a great day. Today, the GUC Club of Triple IT Bhopal is here with something which would rather up a great value to your day. To begin with, I would like to introduce you to Linux. Talking about Linux, Linux is a free open source operating system. It has become the largest open source software project in the world. Professional and hobbyist programmers and developers from all around the world contribute to the Linux kernel, adding features, finding and fixing bugs and security flaws, live patching and providing new ideas, all while sharing their contributions back to the community. I'm optimistic that this 5-day long bootcamp will provide a thorough introduction about Unix, oblique Linux with live dual boot and how to use it further. Along with this, we will also display how open source works and the pros and cons of contributing to open source. We'll also talk about the vast field of DevOps and its importance in this era of technologies and product management. We wish to have your sincere attention so that this bootcamp proves to be very fruitful. Now, I would like to introduce you to the club presidents for the year 2022-23, Nitin Gupta sir and Rishabh Agnihotri sir. Sir, we feel honored to have both of you here. Since its establishment, GUC has been thriving to promote the open source culture and aims to continue the same. Without taking much of your time, Today is the first day boot camp and it will last for 5 days. During this, you will learn the basics of Linux, how to dual boot a system, how to further use it, and you will also learn about open source and DevOps. Now it's time to begin this boot camp, and I hope at the end of this boot camp you become proficient in Linux. Today, club secretaries Pratham and Yes will be your mentors. They will explain about Linux. Now Pratham and Yes will continue. Thank you, sir. So, everyone, I will be responsible for introducing Linux to you. So, what is Linux? The Linux operating system, or Linux OS, is an open source, freely available OS that can be installed on a wide variety of devices, ranging from desktops, servers, smartphones to supercomputers, and purpose-built devices from in-car entertainment systems to mass servers. And this is just the tip of the iceberg. The term open source refers to the fact that the underlying source code may be downloaded, used, modified, and distributed by anyone under the terms of its respective licenses, such as the GNU General Public License. So let me address the elephant in the room. Why Linux? Why should you prefer it over your pre-installed operating system? Well, Linux is free and open source OS. Most OS come in a compiled format, means the main source code has to run through a compiler that will translate your source code to machine code. Modifying this code is a tough job and honestly not even worth it. On the other hand, open source is a completely different domain. The source code is included with a compiled version and allows modification by anyone with knowledge. It gives us freedom to run the program, freedom to change the code according to our preference, freedom to redistribute its copies, which are modified by us. Highly customizable. You can modify anything, and I mean literally anything according to your preferences. You can install a lot of extensions to enhance your desktop, and you can even customize your own user interface. And I think I say it for all of us when I say Linux is preferable for security. Linux supports various security options that will save you from viruses, malware, slowdowns, crashes. Further, it will keep your data protected. Each application needs to be authorized by the admin user. So even if virus exists, it cannot be executed until and unless you provide the virus your access password. Great system performance.
Linux-powered PCs are way faster than Windows. The main reason for Linux being a lightweight system is because it is not crammed with a lot of unnecessary software. You decide what you want to use. A lot of systems running on the background makes your PC sluggish. That's enough from me. Now on to you, Pratham. Thank you, Yash. So when we talk about the Linux, तो हम लोग क्या समझते हैं जनरली जो विंडोज बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं उसके अंदर बहुत सी बार चीजें क्रैश कर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर वहाँ पे बहुत सारे क्रोम के टैब ओपन कर लिए या बहुत 2-3 अलग अलग चीजें खोल ली अनटिल अनलेस आप हाई एंड पीसी बनाओ, तो अगर कुछ भी ज्यादा चीजें ओपन करते तो उसकी रैम क्लॉग अप होने लग जाती है और चीजें क्रैश कर जाती हैं। और अगर एक बार में चीजें क्रैश हुई तो पूरा सिस्टम ही रिबूट साइकिल में चला जाता है। तो जैसे अगर प्रोसेसेस की तरह चलती हैं, प्रोसेसेस बेसिकली रिफर टू दी जो अलग अलग सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं वो अलग अलग प्रोसेसेस सब प्रोसेसेस की तरह रन होते हैं। तो उससे अगर किसी कारण से मेरा फायरफॉक्स क्रैश करता है तो उससे मेरा बाकी सिस्टम नहीं हैंग करेगा, बाकी चीजें किल नहीं होंगी, सिस्टम को रिबूट में नहीं जाना पड़ेगा। और अगर मुझे पर्सनली फायरफॉक्स लैग कर रहा है उस वजह से इशू हो रहे हैं तो मैं पर्सनली चाहूँ तो केवल फायरफॉक्स को ही किल कर सकता हूँ। अनदर थिंग जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है वो विंडोज के अंदर हाई रहता है। हाई इन द सेंस जैसे उसके अंदर जो सारी प्रोसेसेस रहती हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन रन करते हैं वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, प्रोसेसेस एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो उस वजह से अगर कोई सी भी चीज रन हो रही है तो अपने साथ में 4 एक्स्ट्रा बैकग्राउंड प्रोसेसेस रन करती हैं, तो उसकी वजह से रिसोर्स हॉग हो जाते हैं। सारे के सारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे हॉग होते हैं। लिनक्स के अंदर में जो बेसिक यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो उससे जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो केवल पर्टिकुलर जब प्रोसेस रन होगी उसी समय अलॉट होगा, उनको प्री कैशिंग उतनी ज्यादा नहीं होती। उसके बाद में फाइल सिस्टम, तो अगर लिनक्स का फाइल सिस्टम हम देखें तो वो डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर डिवाइडेड रहता है। इससे फायदा क्या रहता है, जैसे इसके अंदर फॉर एग्जांपल टीएमपी करके एक फोल्डर है। टीएमपी बेसिकली रिफर्स टू दी टेम्परेरी फोल्डर। तो जैसे विंडोज के अंदर में अपन ने बहुत सी बार फेस करा होगा कि जो कैश बिल्डअप होता है उसको डिलीट करने के लिए रन कमांड रन करके %tmp करके डिलीट करनी पड़ती है फाइल्स। लिनक्स के अंदर एक फैसिलिटी क्या है, जो टीएमपी का फोल्डर है उसके अंदर वो कैशिंग करता जाता है चीजों की, जैसे रन टाइम में अलग अलग चीजें चली रन हुई उन सब की जो फाइल्स बनती है वो टीएमपी में जाएंगी और जब सिस्टम रिबूट होगा मेरा तो वो सारी फाइलें डिलीट कर देगा अपने आप। तो वो उससे जो फाइल सिस्टम है वो बेटर मैनेजमेंट रहता है। यूजर की कोई सी फाइल है तो वो यूएसआर फोल्डर के अंदर ही मिलेंगी मुझे। अगर मेरे सिस्टम के अंदर कोई सी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है या कुछ भी है वो सारी बिन के फोल्डर में ही जाएंगी। बूटिंग के ऐसे ही सारे अलग अलग फोल्डर्स उनकी सेपरेट प्रोसेसेस और यूटिलाइजेशन के हिसाब से डिफाइंड रहते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि जो भी फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं हम सिस्टम को वो बेटर तरीके से हो पाता है। हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेशन बेसिकली रिफर्स टू कि हम कुछ काम करना चाहते हैं तो वो रिपीटेटिव टास्क होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गिटहब का एग्जांपल लें हम, तो गिटहब पे बहुत सी बार हो सकता है हमें पीरियोडिकली कोई सा कोड है पीरियोडिकली कमिट करना है हमको, तो उसे हर पीरियड के बाद में गिट इनिशियलाइज करके खोल के कमिट करना बहुत रिपीटेटिव लग सकता है, बहुत ज्यादा सेम प्रोसेस लगने लगती है। तो उसके लिए हम लोग अपने लिनक्स सिस्टम पे वर्क फ्लो सेटअप कर सकते हैं, CI/CD जिसके बारे में डेवऑप्स सेशन में ज्यादा बताया जाएगा वो सेटअप कर सकते हैं। बेसिकली वो क्या करता है, हमारा जो भी प्रोसेस है जो रिपीटेटिव टास्क है वो हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं ऑटोमेशन में, तो वो अपने आप उस टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में एग्जीक्यूट करेगा। इससे फायदा क्या है, हमारा जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है वो काम करने में हर बार वो अपना बच जाता है, एक रेगुलर शेड्यूलिंग होती है उस चीज को करने में। इसके बाद में अगली चीज जो आती है इसके अंदर वो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो विंडोज के अंदर जैसे हमको कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए पहले उसकी exe फाइल ढूंढनी पड़ती है, उसको रन करना पड़ता है, उसको फिर इंस्टॉल होगा वो।
लिनक्स के अंदर फायदा क्या है, अगर कुछ भी इंस्टॉल करना है तो हम उसके पैकेज मैनेजर में से इंस्टॉल कर सकते हैं। पैकेज मैनेजर बेसिकली रिफर्स टू जो उसका लिनक्स, जैसे मैं आर्च यूज कर रहा हूँ तो आर्च लिनक्स का पैकेज मैनेजर है पैकमैन। उसके अंदर काफी सारे जो यूटिलिटीज हैं उनके डायरेक्ट फाइल्स लोगों ने बनाकर अपलोड करके रखी हैं, जिनका पीरियोडिक कम्युनिटी रिव्यू करती रहती है ताकि कोई भी मैलिशियस कोड ना आए। तो ऑब्वियसली उसके अंदर से कुछ भी इंस्टॉल कर रहा है वो सेफ ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद में कुछ भी इंस्टॉल करना है, जैसे मुझे कोई सी भी कमांड लाइन यूटिलिटी इंस्टॉल करनी है तो मुझे केवल उसका नाम पता होना चाहिए, वो पर्टिकुलर फ्लैग्स के साथ में इंस्टॉल करके मैं डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकता हूँ उसे। मुझे उस चीज में नहीं पढ़ना पड़ेगा कि ये यूटिलिटी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर मुझे उसका नाम नहीं पता तो मैं केवल उसको बिना फ्लैग्स के सर्च करूंगा तो उससे रिलेटेड जितने भी पैकेजेस होंगे वो सारे मुझे लिस्ट हो जाएंगे। तो इससे सिस्टम को यूटिलाइजेशन, यूसेज और पैकेज मैनेजमेंट में काफी आसानी मिलती है। जैसे बहुत सी बार विंडोज के अंदर हम लोग अगर कुछ भी चीज अनइंस्टॉल करते हैं तो उसके रेमिनिसेंट पैकेजेस पीछे छूट जाते हैं, उसके रेमिनिसेंट पीछे रह जाते हो, कुछ एक दो यूटिलिटीज हर बार छूटती है हमसे, उसको हम ढंग से रिमूव नहीं कर पाते। तो ये लिनक्स इस चीज को ओवरकम करता है उसके पैकेज मैनेजर की मदद से, क्योंकि जो जितने भी पैकेजेस सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल करते हैं वो सारे सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ही चीज कंट्रोल कर रही है, पूरे सिस्टम के पैकेजेस। तो कुछ भी इंस्टॉल होगा या रिमूव होगा वो पैकेज मैनेजर हैंडल कर सकता है उसको। अब अगली बात आती है सिस्टम अपडेट्स की। तो हम जैसा जानते हैं कि जो सिस्टम अपडेट्स है विंडोज के केस में दे ऑलवेज कॉज अ पेन टू अस। अगर सिस्टम अपडेट आ रहा है, जैसे ही अपडेट शुरू होगा हमारे सारे टास्क रुक जाएंगे, सिस्टम फोर्स रिबूट हो जाता है और वो अपडेट इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। अब अगर सिस्टम अपडेट हो रहा है तो उस बीच हम लोग केवल बैठ सकते हो, कुछ और कर नहीं सकते। लिनक्स इस चीज को भी ओवरकम करता है बैकग्राउंड अपडेट्स प्रोवाइड करवा के। तो जैसे बैकग्राउंड अपग्रेड चल रहे हैं उस बीच में हम चाहें तो अपना दूसरी चीज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपडेट रन करा मैंने उसके बाद भी मैं अपना काम कंटिन्यू कर सकता हूं। तो जो लिनक्स है अगर हम उसे देखें तो वो डे टू डे लाइफ का हमारा काफी इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। अगर उसको हम सर्वर्स में से लेके हमारी एंड्रॉइड तक हर चीज में हमें लिनक्स मिलेगा। अगर हम कुछ गूगल सर्च भी कर रहे हैं तो पहले सर्च रिक्वेस्ट किसी सर्वर पे जा रही होगी, वो सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिवर्ट करेगा, बैक वापस से भेजेगा। तो जो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग हो रही है वो भी किसी ना किसी सर्वर पे चल रही है। वो सर्वर भी उबंटू, डेबियन, लिनक्स, कोई से लिनक्स के वेरिएंट पे ही चल रहा है, डिस्ट्रो पे ही चल रहा है, लिनक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन पे ही चल रहा है। तो ऑल इन ऑल जो लिनक्स है वो हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुका है। जैसे मैं रिपीटेटिव टास्क को रिफर कर रहा था तो उसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं हम। जो डिफॉल्ट में कमांड लाइन रहती है लिनक्स के अंदर वो बैश होती है, बैश का शेल यूज होता है बेसिकली। तो जैसे बैश के शेल के अंदर हमें अगर बहुत सारे फोल्डर क्रिएट करने हैं एक साथ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बेसिक सी कमांड अगर यूज करें तो वो एक साथ बहुत सारे फोल्डर क्रिएट कर सकता है उसी के अंदर में। जैसे अगर इसके अंदर मैंने कमांड रन करी तो एक साथ बहुत सारे फोल्डर रिपीटेटिवली क्रिएट हो सकते हैं। इससे फायदा क्या है, जैसे अगर विंडोज के अंदर हम ये काम करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वो GUI बेस्ड रहता है। लिनक्स हमको कमांड लाइन प्रोवाइड करता है, टर्मिनल प्रोवाइड करता है, उसकी मदद से सेम टास्क टर्मिनल पे ज्यादा फास्ट हो सकते हैं। ये लिनक्स के फायदे हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड।